Hello and welcome back to Sports Coverage, Curious Harry and Indian Food and Football. Thank you so much for joining us. We are going to discuss the sort of very disappointing match that what I could understand from my Twitter feed between East Bengal FC and Jamshedpur. Hiren, I'll start with you. Your first reaction on the match. Gameplay wise, it was a I think evenly match. I would say not East Bengal or that I can say कि भाई इतना superior था या फिर जमशेदपुर उतना बुरा था. I think evenly match था gameplay wise, and both the team have created a similar kind of chances. I would say East Bengal have created more chances in first half. I would say कि जहाँ पे उनको finish करना चाहिए था. Xavier Severo misses 2-3 sitter chances, which have could easily could have been a goal, and Rehnes from Jamshedpur FC, the keeper has stopped 2-3 brilliant chances. So that's why I think yeah, I would say the more closer chances would definitely have been created by East Bengal. But Jamshedpur have surprised me with their performance. I think Scott Cooper come up with a very good tactics, and their young players, Indian young players, Nikhil Balra starting in the lineup, Ndongma, Norem. I think both have been really brilliant. So that's a great sign. And another players who is coming in second half also have some promising signs. So that's a good thing for Jamshedpur. And I think it's a I think positive result for Jamshedpur, and I would say disappointing result for East Bengal because it's a home game. And if you are looking for playoff, then you should be beating Jamshedpur, like a team like Jamshedpur, because there is a I think Jamshedpur, Punjab, in सबके सामने you have to get that 3 point. You can't be satisfied with the only 1 point. So disappointing result for East Bengal, but I think Jamshedpur के लिए is a positive start under a new coach, Scott Cooper. Shayan, your team, your reaction. If you ask me, हैरी का फेस बहुत आ रहा है, बहुत खुश है, but मैं उतना खुश नहीं हूँ. I'm not so happy that ways. So I'm very disappointed looking to this game, and I was seeing the game totally, and I totally agree with him and what he said that today's match was very important. If we are planning to go to for the playoffs, we should win against Jamshedpur playing at home. That's the first thing. Gameplay wise, we dominated, but Jamshedpur was not so bad also. They had their chances. I think Scott Cooper removing Chimachuku, I didn't understand how he made that substitution. If I would have been in his place, I would have continued with him because the attacking threat was lost of Jamshedpur FC after he left. So I thought that way. And for East Bengal, a lot of work to do. The thing which I've said many a times in many a places in EBRP and other places, that main problem we will have is our bench strength, and bench strength will cost us many games. And this is something. This was a startup because after Durand Cup's small success, we went to the finals. People started believing that we can go to all the way in ISL. But that time also I said the same thing. ISL will be a different ball game. Come the first game, we get a reality check against the Jamshedpur FC. I think we have discussed in Sports Kabri and whenever we came that this would be the weakest team in the ISL. With all due respect, means if you see the game, what I've seen, the quality of the competition of the team is not so high compared to other teams. मैं इनफैक्ट पंजाब को भी आगे रख रहा हूँ इनसे. If you see that quality wise, और उनके साथ home में if I'm not able to score a goal against them, huge problem ahead. I'm again saying it will be very Herculean task for East Bengal. I don't want to be negative, but you have to have a reality check that we have very slim chance to go for the playoffs. If I'm seeing the first game, I can bet you on that. Yeah, this will have a very tough. If we do it, I think we should tell Mamta Banerjee to have a Carlos Quadrat statue in near our club. I think that we can request. If he does it, वो भी ममता बनर्जी से करवाएं. आपको आपका क्लब को कुछ नहीं करना. उतना भी पैसा आपको ही खर्च करना. हम लोग से नहीं होता ना, मतलब हम बिल लोग से उसके नहीं ऊपर होगा फाड़ भाई. देना है. सही है. बिल नहीं उसके नहीं, ऊपर हमको फाड़. तो चाहिए. दीदी का सपोर्ट नहीं होता कैसे बोल रहे. वी ऑल लव हर. ओके, जोक समाट. Okay, some comments have already started pouring in, so I'll quickly take some comments. I know say Scott Cooper is a really cool-headed and excellent coach compared to Carlos. Tony Havaldar is on his way to reclaim the crown of most yellow cards by a player in a season. How many एक yellow cards इंसिडेंट आया था. already? मतलब लास्ट सीजन भी उसने काफी येलो कार्ड लिए थे प्रणव ने. एक इंसिडेंट आया था, पता है आपको क्या बोलते हैं कि सेन भाई कि फर्स्ट हाफ में दोनों लोड एक साथ सामने आमने सामने हो गए थे, खाबरा वर्सेस प्रणय. दैट वाज अ ब्यूटीफुल मोमेंट फॉर मी. दैट वाज अ मोमेंट ऑफ द मैच टू सी बोथ द लॉर्ड ईच अगेंस्ट.
Anna Faris says Manzaro was delight to watch on the season. The midfield for Jamshedpur. I think he will be the crucial player for Jamshedpur FC, French attacking midfielder, and अच्छा खेला है उसने भी. I think उसने impact डाला है. So let's see, and पूरा I think 90 मिनट वो खेला है. So Yeah. definitely for Jamshedpur ahead of this season, I think he will be the one of the main creator in this squad. Yeah. Lord Baker agrees with Harry on Nikhil from Jamshedpur was brilliant today. There's a question for Cheyenne, top six for Cheyenne. Kobe. Cheyenne has already answered that, Wese, but Cheyenne, would you like to specifically answer that? No, I'm saying it again also, and what I believe is it will be a very Herculean task for this team to go to top six. It will be very, very tough because other teams are much more prepared. They have a much more balanced team, and they have their reserve side much better than us. So for me, East Bengal will have a very tough job to go to the top six. But And when they went to the stand by. If you see other squad also, some of the squad have a same issue like you. They also lack on the, you can say, bench strength. There is a only 2 to 3 squad I can see ki they have a very good bench strength. Otherwise every squad has a, you can say कि not that great in potential wise. अब अगर प्लेयर आके फिर परफॉर्मेंस दे दे तो अलग बात है, लेकिन जो एक रेपुटेशन या फिर अभी तक खेला है जिसने और वो बेंच पे है, तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो उतने कोई, आप देखिए मुंबई सिटी खुद के पास देख लीजिए कि आप बेंच स्ट्रेंथ उतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है उनकी, सिवाय कि मोहन बगान के तो अलग लेवल की ही है. अगर आप उनके साथ कंपेयर करने जाओगे तो फिर तो नहीं हो पाएगा. सो वाली चीज है. तो आई थिंक जो आपके स्टार्टिंग 11 के प्लेयर है वो उसको मतलब स्टेप अप करना पड़ेगा. सिर्फ आप ये नहीं बोल सकते कि भाई कि हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है इसलिए हम नहीं कर पाए. नहीं और बेंच स्ट्रेंथ सर वेंगर भाई का मैं बता देता हूँ, खाबरा इजंट अ लॉर्ड एट ऑल. देखिए भाई ये अब पहले का है, अभी इस सीजन तो उसने अच्छा खेला है, ये एग्री करूंगा मैं. इस सीजन उसने मोहन बगान के लिए आज सॉरी ईस्ट बंगाल के लिए आज के दिन पे मतलब एज अ सेंटर बैक आई थिंक ही हैज बीन गुड. मेरे को तो अच्छे लगे, लेकिन वो पहले का टाइटल है भाई, तो एक बार जब लग जाता है टाइटल तो फिर तो वो आगे कंटिन्यू होता है, इसलिए भाई. Very same. No, और एक चीज Harry, I accept, agree with you, but problem is that we have a very aging squad. And that's again a big That's concern. the thing. But that's the signing आपने जो की है उसके ऊपर है ना. आपने साइनिंग ही अगर ऐसी की है, you go with the experienced player, so that will be the, मतलब आपको पहले वो सोचना चाहिए था ना. हाँ, मतलब तजुर्बेकार लोगों की भीड़ ज्यादा है. Everybody is तजुर्बेकार, right? East Bengal will draw many matches in this season. What do you think? If they finishing like this, then definitely. Yes. They will tough. They will be very tough for them. Very, very tough. There's this topic of the penalty that Adi had touched. Jamshedpur को genuine penalty नहीं दिया, and then there's another follow up on this poor refereeing by LM7. रेफरी तो आज मेरे को ठीक ठाक मतलब लगा है. मेरे को ऐसा कोई नहीं लगा कि उसने कोई कंट्रोवर्शियल, वो पेनल्टी था नहीं था मेरे हिसाब से. वो पेनल्टी नहीं था वो पेनल्टी. सो ठीक है, मतलब हर कोई को लगता है, लेकिन आई थिंक रेफरिंग वाज ओके, मतलब नॉट दैट गुड और नॉट दैट बैड आई वुड से. Correct. Scenario Toro defensive striker. डिफेंसिव स्ट्राइकर बोल सकते हो. ये मेरे को सेन भाई ये समझा दो सब्स्टिट्यूशन, बोरहा अरेरा को निकालना और क्लिंटन को लाना, जबकि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद सीवेरियो को हटा के आप क्लिंटन को लाओगे. वो सब्स्टिट्यूशन समझा दो, क्योंकि बोरहा क्रिएट कर रहा था आपका. उसके बाद आप देखिए आपने ज्यादा क्रिएट नहीं किया है उसके जाने के बाद. सेम जैसे आपने चुमाचुकू जिस तरह से उसके लिए था, ऐसे ही आपके लिए बोरहा अरेरा था. एकदम. And that did work. If you see our Durand Cup final game against Mohun Bagan also, Bora was removed. I didn't know why he was removed. We had some chances when he was there in the field, but this is something which is again, what I can say. Means if you Quadrat being an very experienced campaigner, he's a part of a winning. He was a winning coach, ISL winning coach. So people have very high hope. I hope he delivers. And this time we have got that time, unlike last year, where we didn't had that time. This year we had that time. We had a pre-season for a long time. We had the Durand Cup, where we play lots of games. We have a Kolkata League, which was very running. And then also we are unable to beat Jamshedpur at home. That's a big concern for me. Okay. And if you see, Jamshedpur squad has deteriorated from last year, if you ask me personally. Yes. They more rely on the bench strength wise. They more rely on the youngster. So that's the thing.
Couple of comments more on Clayton that he should be starting or that he's not as good as last year. क्लिटन देखिए लास्ट सीजन भी सैन भाई आई थिंक मतलब ही वाज दी मतलब क्या बोलते हैं सोल गोल स्कोरर बट आई थिंक इस सीजन थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया तो इसके चलते जेवियर सिवेरियो ने मतलब स्टार्टिंग में अच्छा कर दिया था तो आई थिंक कार्लोस कुदरत ने इसीलिए कंटिन्यू किया है उसको बट आई थिंक नाउ क्लिंटन शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट मैच Again, last season was only Clayton and Mahesh show. East Bengal was basically both of them show. And if you see Clayton scoring 12 goals, I, being a East Bengal supporter, really adored that. But one thing was there, he scored 7 goals through penalties. There was only 5 field goals. So we have to understand these things because, and 1 year of age also is got added to his age. And I don't think Quadrat thinks that he could be available for whole of the season because injury comes up his way and he's out of the season. So that's why he's going with Severio Toro. And Toro, I think he's played pretty decent in the Duran Cup. Today was his first game in ISL in East Bengal color. ठीक है, let's wait. Let's see 2-3 games and then we can comment on that. There's a question of Dave, and no, not this one. Sorry, Lord Beke was looking for. Indian players. These are all things made for the other clubs rejected Indian players. And do you agree? No, I agree that rejected to hai. This is I have to agree. Harmandeep Singh Khabra played for 7 games last season for KBFC, right? So he was the rejected player there. And I know last year also he was coming to East Bengal, but that time the coach of East Bengal didn't want to come, didn't let him come in the team. And he told me personally that Shine, I don't want him because he's not good enough to play in a fit squad when he at least wants. And with all due respect, he has been old workhorse and he has played with East Bengal for last 10 years back. But 10 years has passed away. We have to understand that. And problem is that we live in past. The reality in right now where we are not aware of it. So that's a big problem we have. बट वन थिंग इज सैन भाई आपका पास बजट भी तो नहीं था आप चंदा इकट्ठा करने निकले थे आप तो फिर तो यही होगा ऐसे ही प्लेयर लेंगे ऐसे ही प्लेयर मिलेंगे नहीं इस साल का बजट हम लोग का लास्ट ईयर से ज्यादा था इफ यू सी लास्ट ईयर बजट पर उसमें प्रभशुक्रन गिल ले आए ना और नंदा ले आए तो वहां पे खत्म हो गया ना वो बाकी जो चुल्लर पार्टी बजाता उसमें यही प्लेयर आएंगे फिर ठीक है बट देखो बाकी सब टीम में भी तो ऐसा कोई है नहीं ना मतलब इफ यू आस्क 3-4 टीम के बाद तो बाकी का टीम का कंपोजिशन भी तो उतना खास है नहीं तुम ही तो बोल रहे थे दिक्कत ये है ना कि इंडियन प्लेयरों की मार्केट वैल्यू आप देखो कितनी बढ़ चुकी है एवरेज प्लेयर होगा फिर भी डिमांड क्योंकि वहां पे ऑप्शन नहीं है क्लब के पास ज्यादा तो उसकी मार्केट प्राइस ही इतनी हाई है मैं बता रहा हूँ ना आपको वी गॉट इट अ प्लेयर who was selected I'm not taking the name of the player we got in a player from Mumbai City FC he was in verge of signing Odisha FC but Odisha FC didn't sign him only for the money yes I don't want to take the name but he has joined our club with the amount I think many of us will not believe in the comment section so this is and क्यों join किया हमको सब पता है but we can't say ना this thing आपने बदला लिया ना सर्जियो लोवेरा वहां पे चला गया तो वहां का एक प्लेयर तो आपको लेना ही था हाँ मतलब ठीक है ऐसे बदला लेंगे तो उल्टा हम लोग को भारी पड़ जाएगा बदला इसका बात करो एल्सिन्यो कैसा लगा मेरे को काफी इंप्रेस किया भाई जमशेदपुर का जो सेंटर बैक खेला ब्राजीलियन ही इज ब्रिलियंट इन टुडेस गेम आई थिंक ही वाज द वॉल वो स्टॉप द ईस्ट बंगाल फ्रॉम और मैंने उसका देखा मार्केट वैल्यू भी उतना ज्यादा नहीं है दे गॉट अ गुड प्लेयर इन दैट मनी ही वाज इंप्रेसिव आई थिंक ही इज द मैन ऑफ द मैच ऑफ द दिस इज द थिंग वी हैव टू लर्न ना भाई दिस इज द मेन प्रॉब्लम विद आवर क्लब we go for players tried and tested players who have been flop for last 2 seasons उनको अब ले आते हैं और वो नहीं चलते हैं राइट आपने लोन डील में एक प्लेयर को लाया है केबीएफसी से जो केबीएफसी में लास्ट ईयर क्या खेला सबको पता है एवरीबॉडी नोज इट पता है हां so ठीक है ना so many people are watching please guys do subscribe sport khabri Indian food and football around foot and curiosity bhai so subscribe कीजिए guys I think we are only one who are making the every match post-match analysis. So you have to subscribe, guys. Yeah, and thank you for joining us, guys. Thank you for joining us every day. There's an interesting question. Is East Bengal relying more on set pieces? Yes,
Yes, they're related. Because if you see Carlos' history, no, previously, also, he was basically a set piece coach. In fact, in sports cover, even last time I think when Sandeep was here, Sandeep from Deccan Herald, and we discussed this also, and in our channel also we discussed that when Carlos came in, we were sure that it will be a set piece. He was basically a set piece coach in BFC. From there, he got in this. He was the head. After that, he was made the head coach after Roca left. So this was, and we are too much dependent on that. We have to understand. We have a very uh, upfront. We don't have a quality Indian striker. Let us admit that we don't have a good Indian striker. We went out for many players. In last, Ishan Pandita also was in the last verge. He went with KVFC. He thought that KVFC would give that opportunity to him. So we are really dependent on set piece. And if any team is able to mark us properly and understand our game, it's very, very easy for them to stop East Bengal. Nothing much. Or I'm saying again, we have many limitations in this year's team. This year's team building has, I think, we have spent more money, but end result will be the same according to me. पहला एंड गेम से मैं रिजल्ट बता दे रहा हूँ. End result एंड ऐसे ही रिजल्ट देखने वाले. एंड रिजल्ट भाई आई थिंक एक दो प्लेस अप होगा. मतलब आई थिंक कोर ग्रुप बनने में टाइम लगेगा. आई थिंक 2-3 ट्रांसफर विंडो आपको चाहिए अगर आपको अच्छी टीम बिल्ड करनी है तो, क्योंकि हाँ, आपके बट पास अगर बजट भी लिमिटेड है तो 40 साल की देखना उम्र पड़ेगा. के प्लेयर को लोगे तो 5-10 साल का विंडो में भी नहीं होगा. फॉर दैट यू नीड टू हैव दैट एक्यूमेंट ना. तो बट वो भी इशू भाई है. मैंने बोला ना आपको, इंडियन प्लेयर का यही है अभी मार्केट वैल्यू. आप देखो एवरेज प्लेयर आप इस प्राइस में जा रहा है, आपके पास ऑप्शन कहाँ है? दिक्कत ये है ना. आप देख लो, आप राइट, आप नीशु कुमार मंदाराव की बात कर रहे हो, आप लेफ्ट एंड राइट बैक में देखो आप कितने ऑप्शन है आपके पास. आकाश मिश्रा के लिए आप जा नहीं सकते थे, आपको पता है. कौन है अब इस लेवल के भी? तो आपको ये तो देखना पड़ेगा ना कि इंडियन प्लेयर के ऑप्शन कौन अवेलेबल है. बट दिक्कत ये है व्हाट ना. हम लोग ने दिक्कत क्या है ना, मैं अब आपको बता रहा हूँ. सी when we were looking for Indian center back, all East Bengal group whom I know and where I've been linked with, all East Bengal group was we were looking for a center back. प्रॉब्लम क्या हो गया? प्रॉब्लम क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूँ. प्रॉब्लम क्या हो गया दैट नॉर्थ ईस्ट ने फाल्गुनी सिंह को ले लिया. नॉर्थ ईस्ट ने दिनेश सिंह को ले लिया. उसके उनको ज्यादा पैसा लगा नहीं लगा. इट्स अबाउट स्मार्ट बाइंग. वो गेम देखना पड़ेगा ना भाई. लेकिन एक बात आप देखो, आपने 12 प्लेयर रिलीज किए इस सीजन. आपने लास्ट सीजन से 2 प्लेयर आपको मिले, नोरेम महेश एंड लेलैंड चुंगला. ये तो बात मानोगे आप? बैक लाइन में और फ्रंट लाइन में 2 प्लेयर आपको मिल गए जिसके लिए आपको खर्चा नहीं करना पड़ा. उसके अलावा आप देखिए नंदा कुमार को लेके आए तो फ्रंट लाइन में आपका वो हो गया. मिडफील्ड में आप बोरहान साउल क्रेस्पो लेके आए, वो आपके हो चुके हैं. बैक लाइन में आप जॉर्डन हिल से लेके आ गए तो वो तो इंजरी हो गए, वो तो अब लास्ट में हो गया, उसका कुछ नहीं कर सकते आप. और प्रभ सुकरन गिल लेके आए. 6-7 प्लेयर्स तो आपके कोर ग्रुप बन चुके हैं. आपको 3-4 प्लेयर ही आपको एक नेक्स्ट 2 विंडो में, जनवरी और नेक्स्ट विंडो में आपको वो करने हैं. आपकी स्क्वाड फिर रेडी हो जाएगी. फिर ये भी तो देखो आप, इसमें से कोई इतना एजेड प्लेयर नहीं है. नोरेम इज यंग, नंदा इज यंग, लेलैंड चुंगला इज यंग, प्रभ सुकरन गिल इज यंग, साउल क्रेस्पो बोरहारेरा कैन प्ले 2-3 सीजन इजीली. तो ये भी तो देखो आप. आपने 6-7 प्लेयर चला दिए. नहीं, बट मैं यही बोल रहा हूँ, हम लोग जो इम्प्रूव कर रहे हैं बाकी टीम हम लोग से ज्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट. हम लोग इम्प्रूव किए लास्ट सीजन से. मैं बोल रहा हूँ बार बार, आई हैव सेड इट मेनी टाइम्स, बट दैट इज नॉट इनफ to be in the top 6, and that's the reality we should understand. But Shahin, we are not top 6 material. We are not top 6 material, Akshata. मैं पहला दिन बोल रहा हूँ, people अभी मेरे को गाली देंगे खुद से बार, but मैं पहले भी बोलता हूँ और अभी भी I stick to my words. We are not top 6 material for this season, at least for this season. And don't abuse your coach so early. एक मैच हारने से, और मैं जजमेंटल नहीं बन रहा हूँ, मैं जजमेंटल जो हो रहा है उनको बता रहा हूँ that आप हम लोग बहुत ज्यादा जजमेंटल हो जाते हैं. But this team doesn't have the quality and depth to become in the top 6 for me. But do you think they're building up towards something? If you said that this season you do not see them qualifying for the playoffs, but do you think it's building up to something for the next upcoming seasons? How सकते? That is I agree. That I'm agree. Because Quadrat has a plan, but we have to back him. No problem is that एक मैच हारने से 2 मैच ड्रॉ होने से तो जैसे the language which is spoke to and coach and the media pressure in Kolkata is so high. Yeah. And that's the biggest issue. Why? That's the biggest issue with all the 3 clubs. चाहे मोहन बगान सक्सेसफुल है, लेकिन लास्ट सीजन हमको पता है कि जॉन फर्नांडो on the verge of sacking. So हाँ तो था.
हाँ, तो ये तो है वहाँ का। अब क्या करें, अब वो तो सबसे बड़ा दिक्कत है। अब मोहम्मद अनसी देख लीजिए, जो बंदा आपको 6-0 से जिता रहा है, आप दूसरे दिन उसको सेक कर रहे हो। तो हाँ, तो वही तो है। ये तो आपके वहां पे है कि आप एक कोच को मौका ही नहीं देते 2 साल का मिनिमम। ये तो हर आईएसएल में मोस्ट ऑफ द क्लब के साथ ये इश्यू है कि एक सीजन आता है और हटा देते हो आप, एक सीजन आता है फिर प्लेयर नए सिस्टम में जाता है, नया वो करता है, फिर बोलते हो कि ये Not प्लेयर just ऐसा है ऐसा ISL, है। Hiren, but I think हाँ world football में हर जगह ही है, the coach is the first one to suffer or to हाँ be sacked. Like इस before इस every इस season, people do polls that which will be the first हाँ, coach to get the sack. करेक्ट। So that is not just restricted to us. Uh, Many questions are flowing in, guys. Thank you so much for joining us tonight, and please follow all the 3 channels. Sorry, 4 channels. Arunava is not here tonight. Hopefully, he'll join us tomorrow. But thank you so much, and please subscribe to all the 4 channels. Um, and Shine, what do you think did Jason take from reserve or chance in at least main squad? How is he not even squad by performance yet? Well, if he can give that creativity. ये आप केरला से व्हाट लाए आई हो ना जैसे ठीक है। हाँ, केरला से लाए हैं। बिनो गॉट हिम फ्रॉम देयर, and I think we should give him that chance because we need players, bhai. We need Akshata, we need players. Hmm. And the what East Bengal club has done right now, they're working on the reserve side. I think that's a good thing for a long term plan. 3-4 years that will give you the results. That I might agree. बट शॉर्टकट सक्सेस नहीं होगा, तो ये सीजन हम लोग को फिर स्ट्रगल करना पड़ेगा। मैं यही आई एम सेइंग अगेन, आई एम सेइंग ऑल द फैंस ऑफ ईस्ट बंगाल थ्रू योर चैनल एंड जो हम लोग के चैनल से भी देख रहे हैं, दैट प्लीज बी पेशेंट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ देख हम लोग पेशेंस खो जाए और हम लोग पहले मैच में जाए। आई एम नॉट बीइंग जजमेंटल, मैं बोल रहा हूँ इस टीम में डेप्थ नहीं है, तो कोच को गाली मत दो, Ji. डेप्थ And है नहीं। and while we are also discussing the fact that the budget constraints are there, and before the start of the season, East Bengal had asked the fans to come and contribute. Um, I have 2 questions on this. A, do we know how that budget was allocated and how it was utilized? B, what are the steps being taken, or are there any steps being taken to bring in more sponsors, considering the massive following of East Bengal? अक्षता, मैं क्लब में नहीं जा पाऊंगा, ऐसे ही मेरे को डंडा मार देते और हम नहीं जा पाऊंगा। See. बट सेइंग दैट आई एम जो मैं मेरे को लगता है दैट क्राउड फंडिंग व्हिच वी डिड लैक दैट विजन, एंड जिन्होंने किया ये सब चीज उनको उनका आइडिया ही नहीं है कैसे क्राउड फंडिंग किया जाता है। बेसिकली मेरे को लगा था दुर्गा पूजा का चंदा लेने हम लोग आए हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए हैं। अगर आप वो लिफाफा देखें, क्योंकि बट इफ यू रिमेंबर दैट, मेरे को अभी हंसी आ रहा है, आई शुड नॉट इट्स माई क्लब, बट फैक्ट इज दैट हम लोग वी वर नॉट प्लान टू डू दैट क्राउड फंडिंग, एंड इन फैक्ट we went to North Bengal also, where we have a huge fan base there, and where our one of the top officials, he says that we are right now beggar and we are asking for money. So we have for our officials, we have come to this level our officials are saying we are become bigger. So अगर इनसे कैसे होगा ना, ऐसे आदमी से आप कैसे इंप्रूव करोगे क्राउड फंडिंग जैसे, और उसमें ट्रांसपेरेंसी भी नहीं था हम किस में खर्चा करेंगे। मेरे को जो अमाउंट सुनने में आया है उनको मिला था, नॉट लेस, मेनी ऑफ माय सब्सक्राइबर हैव गिवन दिस मनी टू देम, उनको तो रिसीट मिला, बाद में एक थैंक यू कार्ड मिला है, जैसे हम लोग को मिलता है ना कोई अच्छा परचेस करने से कोई भी शॉप में थैंक यू कार्ड एंड 50,000 शॉपिंग एंड 1 लाख शॉपिंग, तो वैसे थैंक यू कार्ड मिला था, बट वो थैंक यू कार्ड ही मिला है। उसके बाद क्या हुआ इस मनी का, देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी फॉर दैट, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। दैट इज द इशू। ट्रांसपेरेंसी नहीं हो तो पता ही नहीं चलना उस पैसा का क्या हुआ। जो अमाउंट मिला था खराब नहीं मिला था, आई कैन एश्योर यू। नॉर्थ बंगाल में जो क्राउड फंडिंग किया गया था in all pockets, and many of the supporters came. In fact, one of my subscriber has paid, by not taking his name, he's paid 50,000 directly on that day. So there are people abroad में रहते हैं, तो उन्होंने पैसा भेजा भी था, उनको थैंक यू कार्ड मिला है, तो वो अच्छा लगा मेरे को। थैंक यू कार्ड तो मेरे को रिमाइंड करता था जब मैं अच्छा काम करता था स्कूल में, आई यूज्ड टू गेट दिस थैंक यू कार्ड फ्रॉम पीपल फॉर Do you agree with this youth Indian comment? East Bengal need a young management. यस वी नीड। Yes, you can नहीं होगा that. इस
We need young people. एक We need it. एक उसमें ऐड करना चाहूंगा कि आज क्राउड भी मेरे को उतना ज्यादा दिखा नहीं मैच में. हाँ. What happened? Timing, what is the issue? हैरी मंडे था. फर्स्टली मंडे इज एन सबका ऑफिस रहता है, तो वो है. एंड मेनी ऑफ आवर मेरे हमारे जितने मेंबर्स चैनल से थे एंड जो सब्सक्राइबर्स थे बहुत सारे दे वेंट टू द गेम. एंड अगेन क्या होता है ना, हम लोग का जो फैन बेस है ना प्रॉपर कोलकाता से कम है. If you see our fan base, is basically adjacent areas like North 24 Parganas, South 24 Parganas, where they have this issue of metro भी नहीं चलते वहाँ पर. तो एक issue वहाँ पर भी, and Salt Lake being in a position where it is, and it's very difficult for them to travel. तो वो है. 17 के फैन बोल रहे हैं सप्तऋषि. अच्छा, Not 17 bad के being a थे. मंडे हिसाब से सही है. If you see first game of the season, Monday being Monday 17 के. कल तो गुवाहाटी ने 7,000 आदमी आए. Being a हाँ, Sunday. गुवाहाटी में 7,000 थे, 4,000 ओडिशा में थे. सैटरडे. तो उस हिसाब से मंडे में 17,000. नॉट बैड. Guwahati के match में, I mean, people were expecting a lot more crowd, right? Like पहले Yes. before the people said that there's a lot of excitement, maybe. बट अक्षता क्या वहाँ पे लास्ट भी- सीजन लास्ट मैच में 300 आदमी आए थे, तो वहां से 7,000 हुआ है, तो 200% ग्रोथ है. और वहाँ पे भी सेम इश्यू है कि जो गुवाहाटी का स्टेडियम है वो सिटी से बहुत बाहर है, तो रात को 10 बजे के बाद ट्रैवलिंग is one of the transportation is main issue with some of the stadium. Yes. So that's also one of the case. Arman has raised a different sort of a point, so I just wanted to take up this comment that he's made. क्या ISL की वजह से ईस्ट बंगाल में एकदम रश कर दिया फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए? अगर ईस्ट बंगाल आई लीग जीत कर प्रमोट होती तो क्या वो सही नहीं होता? But also, like, I would like to add on to this, Arman, that promotion अभी recently आया है, तो वो एक फैक्टर है. But please, Hiren and Shayan, your view on this. देखिए ईस्ट बंगाल और सब जब वो आई लीग खेल रहे थे तब आई लीग वाज दी यू कैन से इन पैरेलल विथ आईएसएल. वही टसल था बिटवीन बोथ द लीग्स के बीच में कि कौन यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन बनेगा और कौन सेकंड डिवीजन बनेगा. तो ईस्ट बंगाल यहाँ पे अब देखिए मोहन बगान भी आप बोल सकते हो कि मोहन बगान ने भी एटीके के साथ ज्वाइन करके वो आ गए. अदरवाइज उनका भी मतलब स्ट्रगल हो सकता था, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता. अगर उनकी जो आई लीग वाली स्कोर ही आती एंड एटीके सेपरेट रहता तो फिर वो मतलब आप बोल सकते थे. लेकिन ये तो मतलब सक्सेस आपने रिसेंटली 3 सीजन में जब से आए हो तब से देखा नहीं है, दैट्स व्हाई मतलब आपको लगता है कि वो करना चाहिए था. लेकिन अगर एक प्रॉपर प्लान एंड विजन के साथ जाओगे तो आई डोंट थिंक सो कि फिर ये इश्यू आएगा. और ईस्ट बंगाल नीड्स टू बी इन द फर्स्ट डिवीजन, सिंपल एज दैट. वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब इन इंडिया, सो डेफिनेटली दे शुड बी इन द आई थिंक इन आईएसएल. उसमें कोई वो नहीं होना चाहिए. Shayan, would you like to add on to that? I totally agree with Hiren, and we have discussed it many times that we should have waited. We should have taken the hard way or in order to take a shortcut. And what इससे क्या हुआ ना, हम लोग struggle करने लगे. If you see in the first, when we joined in the first year, we get in a late investor. Seaman comes in, and again we have to first year में team बना वैसा नहीं सर. Robbie Fowler came in. 10 दिन का प्रैक्टिस में हम लोग ISL खेल लिए, अच्छा रिजल्ट नहीं आया. सेकंड सीजन में अगेन हम लोग खेले विद रॉबी फाउलर नहीं था, सीमेंट रहेगा कि नहीं पता नहीं था, टीम बनना था एक बना के भेज दिया. देन अगेन अभी केम इन. सो क्या होता है ना, हम लोग का कोई कंटिन्यूटी नहीं रहा है इन दैट वेज. और सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे को जो लगा है, ईस्ट बंगाल जो रन करते जो ऑफिशियल्स है वो मोहन बगान का एटीके मर्ज के बाद थोड़ा नर्वस हो गए. उनको लगा अगर मोहन बगान आईएसएल चला जा रहा है और हम लोग आई लीग खेलते हैं, हम लोग का जो पहचान रहेगा, बिकॉज वी बोथ द क्लब्स आर taken into same board, no? If you see all the fans and everything, we have a rivalry in that ways. So ये rivalry में कभी क्या होता है, हम लोग सेकंड डिवीजन खेल रहे थे because आई लीग बन ही गया था सेकंड डिवीजन. लेट्स फेस द फैक्ट. और एआईएफएफ ने कोई कुछ कसूर नहीं छोड़ा था, मतलब हम लोग सेकंड डिवीजन बनाने के लिए उसको, मतलब दोपहर का 1 बजे गेम 2 बजे गेम जो पॉसिबल था किया था उसको. तो अगर, और उनको भी पता चल गया था, ईस्ट बंगाल ऑफिशियल्स आल्सो अंडरस्टूड दैट अगर हम आई लीग में पड़े रहेंगे एक्चुअली इट विल बी डेट्रीमेंटल फॉर द क्लब एंड द फैन बेस आल्सो. बट क्या होता है, एक दूसरे सीजन अगर हम लोग वेट कर लेते, अगर जीत जाते, शायद कॉन्फिडेंस बढ़ता, प्लेयर्स का भी बढ़ता, ऑफिशियल्स का भी बढ़ता, और कोई फैंस कोई स्पॉन्सर भी आ सकता था फ्यूचर में. हरी अप करने के चक्कर में क्या हुआ, एक गलती हुआ, फिर 2 गलती हुआ, फिर 3 गलती हो गया. 3 गलती का सीजन चला गया, अभी फोर्थ ईयर चल रहा है. देखिए हाउ वी डू दिस सीजन. बेटर करेंगे, लास्ट ईयर से बेटर करेंगे. सुब्रंशु भाई का मैं ऐड करना चाहूंगा कि ओडिशा वाले गेम में हाँ लाइटनिंग का इशू था,
काफी वेदर खराब था, हेवी रेन था, तो उसके चलते ऑडियंस थोड़ा सा कम आया। वो भी एक वन ऑफ द रीजन था। बिल्कुल। Yeah. Youth Indian has also further added another point in. Any comments on this? मोहम्मदन हाँ विल कम, इट विल बी मोर कॉम्पिटिटिव। डेफिनेटली एक कोलकाता में जो तीनों क्लबों की जिस तरह से राइवलरी रही है, एक और एक्स्ट्रा एज मतलब वो दे देगी और डेफिनेटली हाइप अप हो जाएगा। लेकिन अब आई थिंक उनको मोहम्मदन को मतलब आई लीग जीत के ही आना पड़ेगा। बात आ रही है कि लुलु ग्रुप ने इन्वेस्ट करने का देखा है, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन वही रहेगा कि क्या भाई आईएसएल अलाउ मतलब एएफएफ अलाउ करेगा एफएसडीएल अब डायरेक्ट एंट्री के थ्रू, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन रहेगा। तो देखते हैं, अगर वो आते हैं तो डेफिनेटली देयर विल बी मच मोर हाइप इन कोलकाता particularly because all the three करेक्ट clubs have a past history. So Yeah. I करेक्ट also want to slightly talk more about Jamshedpur FC. Um, um, हम लोगों ने उतना उनको क्रेडिट नहीं दिया, मतलब हम लोग के नज़र के हिसाब से they might not perform that well this season. But looking at the match tonight, do you think that they might just end up surprising people? आई थिंक सो जिस तरह की गेम प्ले आई थिंक दिखाई, और देखिए स्कॉट कुपर का मैंने आज मेरे चैनल पे भी बोला था स्टार्टिंग में भी कि देखिए उसके पास पेडिग्री है, ऐसा नहीं है कि कोच मतलब नया है या फिर उतना ज्यादा वो एक्सपीरियंस नहीं है। फिलीपाइंस के नेशनल टीम को कोच कर चुका है एंड एशिया में थाई लीग में भी उन्होंने अच्छा किया हुआ है जब वो एज अ कोच थे, तो आई थिंक एक्सपीरियंस है। एंड आज गेम प्ले में भी दिखा, मतलब गेम प्ले वाइज देखेंगे तो आप ये नहीं बोलेंगे कि जमशेदपुर वेर मतलब क्या बोलते हैं कि टू बैड। आई थिंक दे वेर I think go toe to toe with I would say East Bengal in their terms in terms of the gameplay. So I think Scott Cooper can do, but I think let's see कि उनके जो प्लेयर्स है पर्टिकुलर यंगस्टर जिस तरह से आज मैच के मैच खेले तो उस तरह से अगर वो परफॉर्मेंस पुट अप कर पाते हैं कंटिन्यूअसली देन डेफिनेटली दे बीट सम ऑफ द बिग टीम्स विदाउट अ डाउट, और एक सरप्राइजिंग रहेंगे। आई डोंट थिंक सो कि वो मतलब टॉप 6 में आएंगे, लेकिन वो एक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा कि कौन टॉप 6 में जाएगा कि नहीं जाएगा, किसी का खेल जरूर बिगाड़ेंगे। आई थिंक उस सेंस में कि कुछ मैचेस वो डेफिनेटली यहाँ पे सरप्राइज करेंगे कि वहां पे वो मतलब बड़ी टीमों को भी हरा सकते हैं या फिर मिड टेबल टीमों को भी हरा सकते हैं। तो उस सेंस में मैं मतलब उनका वो देख रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा थ्रू आउट द ईयर लीग में कंसिस्टेंसी बना रखना, लेकिन बीच में एक आध दो मैचेस उनके आएंगे कि जहाँ पे मतलब वो इस तरह से परफॉर्मेंस पुट अप कर सकते हैं। जी, Shayan, would you like to add on to that? हाँ इफ यू आस्क मी जमशेदपुर टीम अगर आप पूछते पोजीशन वाइज they have a similar issue like East Bengal. Their average squad which they played, average age of the squad which played today was 30 years. So that's again a aging squad. And अगर मेरे को पूछते हो आप, they can surprise in long run. They can surprise in few games, but I don't think they are that team to be in the top 6 again. और एक चीज है, उनमें कुछ उनके पास कुछ प्लेयर हैं जो अच्छे हैं। जेरेमी I think he played. He had a very decent game today. I really liked how he played. I think Elsino, I think again a very good player. They have got few good players, but ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे मेरे को ये लगता है। करेंगे शायद 2-3 आदमी two or they can stop 2 or 3 teams going from IS to the top 6, but for them going to top 6 I think that will be Herculean. That will be very very tough job. I don't think they will go so far. I'll quickly take some more comments. Mallikarjun says BSC is managing so good and they have best academy among all. We can see quality players from the academy like Roshan Singh, Shiva Shakti. They need fans not like Bengal or Kolkata footballing states. Jamshed. Shiva Shakti is not from their academy. Shiva Shakti is from different academy in Chennai, but definitely is a last year B team में था उन्होंने definitely. Yeah, there's a stadium in Kolkata. Yeah, 3 clubs share the same stadium. Today the pitch standard not up to ISL level. ISL लेवल में ये बहुत ज्यादा ओवर स्टेटमेंट हो गया। ISL लेवल का क्वालिटी का सॉल्ट लेक स्टेडियम नहीं है, तो मेरे को पता नहीं कौन स्टेडियम है मतलब इंडिया में। नहीं उसका कहने का मतलब है कि ईस्ट बंगाल और मोहन बगान की सेम ही पिच है, तो पिच ज्यादा यूटिलाइज होगी ना, तो उस लेवल पे आप मेंटेन नहीं कर पाओगे। आज मतलब डेफिनेटली पिच उतनी कोई खास नहीं थी, मतलब उस सेंस में हाँ वाली मतलब चीज खास नहीं है वो। ISL स्टैंडर्ड ठीक है, मतलब उस हिसाब से ठीक है। मतलब ऐसे अगर तो अभी भाई स्टेडियम पिच का बनाना स्टैंडर्ड पड़ेगा तो अच्छा है भाई, क्या है, अब सब कुछ अब। और नेशनल टीम जो खेली थी बेंगलुरु में
उससे अभी देखना, अभी बेंगलुरु बीएफसी खेलेगी और नेशनल टीम खेली थी उसमें कांतिरवा में, पिच देखना आप, तो वहां पे मेंटेन तो किया जाता है पिचिस मेंटेन किया उनका। जाता है, मेरे को बेसिकली सैफ कप में बेसिकली मेरे को नहीं लगा था। आपको मेरे को हाँ नहीं तो लगा था वही बोल सैफ रहा कप हूँ में। ना मैं, आईएसएल में और साथ में, वही तो मैं बोल रहा हूँ, नेशनल टीम में आप देख लीजिए, और जब आईएसएल आती है तब क्लब, क्योंकि क्लब के पास आ जाती है ना चीज, तो क्लब ज्यादा वो मतलब देते हैं उसके ऊपर ध्यान। दैट मे बी रीजन, बट ठीक है, मतलब ये मेरे को क्लिंटन उतना सिल्वा का खास काफी सारे लोग बार बार पूछ रहे हैं कि भाई क्यों नहीं स्टार्टिंग 11 में, तो भाई क्लिंटन सिल्वा का सिंपल सा रीजन है, क्योंकि क्लिंटन सिल्वा का एक तो वीजा लेट आया था, तो टीम के साथ वो बाद में जुड़ा था। आप देखिए, अगर आप दुरांत कप देखेंगे तो जो कार्लोस कुदरत ने स्टार्ट करवाया था वो जेवियर सिवेरियो के साथ किया था, और उसने आप देखिए दुरांत कप के स्टार्टिंग के 2-3 मैचों में अच्छे गोल स्कोर किए थे, तो ही लुक्स प्रॉमिसिंग, और यंग बंदा है, एंड भले ही हैदराबाद में सेकंड स्ट्रेंज प्लेयर था, लेकिन यहाँ पे उसने आके अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो कोच का भी एक कॉन्फिडेंस बढ़ा कि भाई चलो इसको कंटिन्यू किया जाए, तो उसके चलते उसने कंटिन्यू किया। पिछले 2-3 मैच से नो डाउट उसका दुरांत कप का फाइनल में भी उतना कुछ खास नहीं कर पाया था, और इस मैच में भी नहीं कर पाया, तो डेफिनेटली अगर वो इसी तरह से कंटिन्यू रहा तो क्लिंटन सिल्वा वापस स्टार्टिंग 11 में आ जाएगा, अदरवाइज क्लिंटन सिल्वा ये क्या बोलते कि जेवियर सिवेरो कंटिन्यू करेगा। VAR light was something that was talked about. नो नो नो, दूर दूर तक चांस नहीं है। अभी रिसेंटली टाइटल रेफरिंग की स्पॉन्सर तो आया नहीं है VAR लाइट। अभी रिसेंटली रेफरीज की बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी एफएफ की, उसमें उन्होंने मतलब दूर दूर तक उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं हुआ है, तो देयर इज नो चांस, बिकॉज फर्स्ट यू हैव टू ट्रेन योर रेफरीज Yes, फॉर that's देयर very थिंग टू important thing. ब्रिंग्स, तो दैट्स द फर्स्ट स्टेप, एंड वो कहीं प्लान में ही नहीं है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि दे आर नॉट गोइंग फॉर दैट। उसके लिए फिर से एक वर्कआउट होना पड़ेगा, फिर जाए उसका जमीर जाग जाए एएफएफ का कि भाई क्या ही हो रहा है ये, तभी तभी जाके कुछ हो सकता है। ऐसे खुद ही बोल के फंस गए ना। हाँ, खुद ही वो उन्होंने उसमें मोमेंट में बोल दिया फैंस को उस करने के लिए कि चलो हम वीआर लाइट ला देंगे, लेकिन उनको भी पता है अभी जेब तो खाली है, तो क्या लाएंगे। Yeah, but it's an expensive affair, and as he हाँ mentioned already, के training की required है of the referees. But overall, अभी तक इतने सारे matches हो गए हैं, refereeing कल शायद already sorry Arnava also said this that refereeing so far has been good. हाँ, डिसेंट रही है। Yeah, हाँ, वो हर वक्त ऐसा ही रहता है, ये इसमें तो डिसेंट ही रहता है, प्लेऑफ में जाके ये लोग ऐसे ऐसे कुछ ब्लंडर कर देते हैं कि फिर फैन बेस पूरा मतलब वो हो जाता है, तो वाली चीज I'm है। sure उन पे भी pressure होता होगा हाँ, जैसे प्रेशर होता है दूसरा बिल्कुल, team है, right? इट्स नॉट So इजी जॉब ऑब्वियसली। right, yeah. सेन And सरकार इज tomorrow, गोइंग टू so अच्छा। next big match, if I'm not wrong, is between Mohan Bagan and Bengaluru FC, right? हाँ, So I think we can also maybe quickly talk about that. उसका और इंडिया The अंडर 19 का थोड़ा सा बात कर लेते हैं, वो दोनों हाँ, जी इंडियन अंडर जी 19 का हिरेन आज मैच था, uh, दैट वाज अ 1-1 2-1 victory against Bhutan, but okay. not a great gameplay I would say from India under 19. Bhutan were played well, so there is a concerning thing सैन भाई कि अंडर हाँ, 19 टीम भी मतलब लॉन्ग बॉल क्या है यार। हाँ, वो तो एक्चुअली क्या हो ना, हम लोग ने बहुत सारा इंग्लिश कोचेस के इन्फ्लुएंस पे खेला है, and वो ना हम लोग पासिंग गेम हम लोग से नहीं होता है विद द बॉल। एक्चुअली वी आर वेरी बैड, इफ यू आस्क मी, नो, इफ यू सी, मैं सैफ कप में देखा था जो टीम्स हम लोग से पीछे है इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग, फॉर एग्जांपल नेपाल, और इनफैक्ट म्यांमार व्हेन दे केम टू प्ले इन ट्राई नेशन टूर्नामेंट इन इम्फॉल, तो विद द बॉल दे वर अ बेटर टीम देन अस। We may have scored that goal, but I think we have scored the goal through Sunil Chhetri. Barring that, there was not much of difference with both the teams, and this is a big concern for us. What we have said before also, uh, Igor Stimac says this again and again that we have started playing passing football. But problem remains that under his tenure, what I've seen, the passing accuracy is not up to that high level. In fact, if you see, सैन भाई, आप अभी के जो प्लेयर है उनको अभी थोड़ा पासिंग सिखा सकते हो, वो तो अभी जो सीख के आगे वो आगे, अब वो पासिंग नहीं, अब थोड़े से वो हो जाएगा इम्प्रूव। नहीं सीखा नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपके कोच बोल हाँ रहे हैं, मैं नहीं बोला, आई एम नॉट सेइंग, ही इज सेइंग दैट हम लोग पासिंग फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर दिए हैं, बट हम लोग पासिंग फुटबॉल खेलना नहीं आता हम लोग को, और इसलिए हम लोग लॉन्ग बॉल में खेलते हैं। इनफैक्ट मैं बॉब वार्टन से जब भी बात करता था, जब वो इंडिया में थे एंड ही वाज पार्ट ऑफ दिस कोच एंड सीवन आल्सो, they know we are not good enough and they used to say it publicly, and that's why they were not so famous, because सच बात बोलने में तो पीपल को खराब लग जाता है, नो, that's again a big problem.
then we say नहीं उनका मेरा मन का बात नहीं बोला तो ये सही नहीं है तो ये प्रॉब्लम भी है तो that is a big problem we have so next week Mohan Bagan versus Bengaluru FC, that would be a big match. Yeah. big match very big match सोल्ट लेक में ही है क्या? सोल्ट लेक में है? बीएफसी का हाँ और मोहन बागान का हाँ सोल्ट लेक में है शायद सोल्ट लेक में है। बेंगलुरु and BFC right Bengaluru and Mohan Bagan right हाँ जी. Quickly, Lord Baker says why Crystal John is not officiating this ISL game. आएगा भाई, डॉन की एंट्री बाद में होती है। Some people also want to talk about the India versus Saudi Arabia point. I also had another question. Sorry, Kumar, a lot of questions are coming, so I am kind of missing out on something. ले लो कुमार भाई का एक ले लो कमेंट ऊपर से, थोड़ा सा ऊपर ही आया था कोई, लेकिन आपके लिए ही था वो। Hi Akshata and saying East Bengal led a good defense today, no panic. So So I think that was already taken, and just Jamshedpur took the penalty. Amanjot tackle from front, that is okay, but Rakhi tackle on Imran Khan from the back side on his leg. Jamshedpur should get penalty if ISL has VAR. It was a clear penalty. But I don't know. There's a lot of debate on that penalty. A lot of people said that the decision was all right. बिकॉज बॉल खाबरा के पास थी, ये दोनों के पास नहीं थी, इसलिए दिक्कत वो थी। खाबरा थे वहां पे बॉल उसने क्लियर की और ये दोनों थे वहां। ये टैकल इसने मारा है, रकीब ने टैकल उसने तो मारा है, वो तो बनता है, सो वाला चीज था। दैट्स व्हाई आई थिंक दैट पेनल्टी वाज नॉट गिवन, अदरवाइज दैट वुड बी अ पेनल्टी। So a lot of people, some people wanted us to talk about the India versus Saudi Arabia match also. And while we were on SteamAC, he also mentioned one thing, that in this particular Asian Games, he has managed to identify a couple of players जिनके साथ वो खेलना चाहेंगे, उनको वो डेवलप करना चाहेंगे उस लेवल पे कि वो इंडियन फुटबॉल के लिए आगे खेलें। आपको क्या लगता, मतलब, and he said that he does not want to reveal the names right away because he wants them to concentrate on the on the game. एक तो पहली बात बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे ये लग रहा है कि despite all that has happened, SteamAC has not stopped tweeting or not stopped giving the interviews. They have constantly kept coming. But who do you think are the players that might have made that cut? वो सिंपल सा है, वो पहले से पता ही है, वो तो हमको भी पता है कौन है वो। राहुल केपी आपका किंग्स कप से खेल रहा है, वो कंटिन्यू करेगा, वो पता ही है। लेलन चुंगला को आपने पहले ही एशियन गेम में डाल दिया था। लेलन चुंगला इज वन ऑफ द लास्ट ईयर्स वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिसिंग यंगस्टर, तो उसको तो आपको लाना था, तो एक वो हो सकता है। उसके अलावा ब्राइस को आप ला सकते हो क्योंकि आसिक इंजर्ड हो चुका है, आपको लेफ्ट फ्लैंक में अगर जाना है तो। बट आई थिंक ब्राइस का थोड़ा सा मेरे को डाउटफुल लग रहा है, बट अदरवाइज अगर वो सोचता है तो वो आ जाएगा। उसके अलावा मिडफील्ड में आई डोंट थिंक सो कि अमरजीत सिंह ने मेरे को तो कुछ इंप्रेस उतना ज्यादा किया है, बट आई थिंक उसने पिछले 2-3 इंटरव्यू से अमरजीत सिंह की और तारीफ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसको मौका मिल जाए मे बी। बट आई थिंक कंपटीशन वहां पे टफ है, जिक्सन है, सुरेश है, रोहित है, थापा है, तो आई थिंक मुश्किल है अमरजीत के लिए। उसके अलावा बैक लाइन में मतलब साना सिंह आपके पहले से हिस्सा थे, संदेश ऑलरेडी पहले से हिस्सा थे, नरेंद्र गोयल में चांस नहीं है। आई थिंक राइट बैक पे आपके पास जगह ही नहीं है, अब्दुल रबी भी राइट साइड पे जगह नहीं है आपकी। फ्रंट लाइन में आप देख लीजिए, रहीम अली तो है ही है आपका। सो आई डोंट थिंक, बस यही 2-3 प्लेयर है जिसमें से 1-2 तो ऑलरेडी मतलब है ही है, तो बाकी उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता कि आयुष नहीं कुमार रेड्डी, आयुष छेत्री नहीं, आई डोंट थिंक सो ही विल गेट Apuria, someone he mentioned, and अपुया को नहीं लेंगे, बोल दिया है नहीं लेंगे, वो तो बोल दिए हैं। नहीं फिर अब देखते हैं, अभी रिलेशन अभी अच्छा हो लेना चाहिए, बट आई थिंक वही वाला है। बाकी तो आई डोंट थिंक सो कि कोई प्लेयर आ सकता है। विंग्स में आप देखो, विंसी बरेटो नहीं आ सकता आपका, ये अजहर नूरानी आपने जो लेके गए वो नहीं आएगा, अनिकेत जादव नहीं आएगा, तो कौन बचा? रोहित दानू का चांस नहीं है, बस but यही है। Apuria तो also, after the comment that, like, he also came back with a positive sort of a statement na, a year later, उसकी ओर से अच्छा मेरे को वो देख के हाँ, अच्छा लगा प्लेयर की ओर से कि वो ही वांट्स टू मतलब गेट गुड टर्म्स विद द कोच, दैट्स अ गुड मूव। True, and I think because of this, even if he was not supposed to make the cut, he might just because it can turn out to be controversial. मर्देका कप का टॉप टीम सिलेक्शन हमें बता देगा अभी, आई थिंक एक ही वीक में हो जाएगा मर्देका कप का सिलेक्शन, क्योंकि 13 से आपका मैच है। सो आई थिंक नेक्स्ट वीक में भी मर्देका कप का स्कोर भी आ जाएगा, वहां पे पता चल जाएगा कि स्टिल देयर इज ए, मतलब वो क्या बोलते कि वो डिफरेंसेस और वो खत्म हो चुके हैं, क्योंकि अपुया डिजर्व इन द नेशनल टीम विदाउट अ डाउट। गुरकीरत का पूछा इंडियन स्पोर्ट्स,
गुरकीरत रहीम अली अगर जाएगा तो आएगा, अदरवाइज डिफिकल्ट है। गुरकीरत आ सकता है वैसे, क्योंकि ईशान पंडित अभी इंजर्ड है, सो ही माइट गेट अ चांस गुरकीरत। Yeah. And deserves a While we're chance. talk, while Chance मिलना चाहिए उसको. yeah. Let's while try. we're talking, क्या हो? हाँ बताओ. sorry, I'm interrupting, but while we're talking हाँ. about the senior national men's national team, guys, the women's team lost, but please make sure that we keep supporting them, because I could see on Instagram that they have all, like gone silent. They are not visible anywhere. So they must have taken this defeat very strongly to their hearts. So please keep showing their support. उन्होंने मैचेस अच्छे खेले हैं. प्लीज वो स्कोर लाइन पे मत जाए, ये मत देखिए कि वो 2 बैक टू बैक मैचेस हारे हैं. Just look at the kind of performance they showed on the field match का अगर आपको highlight कहीं से मिले वो देखिए, and please keep supporting them, and if you can on social media show them some love or support. Please do that also. Correct. अब्दुल I रबी agree, माइंडसेट पे, Akshata. अब्दुल रबी जगह नहीं बनेगा ना राइट साइड पे, अब्दुल रबी का जगह नहीं बनेगा। निखिल पुजारी है, रोशन सिंह है आपका, आशीष राय है, 3 प्लेयर तो ऑलरेडी आपके वहां पे है, तो अब्दुल रबी का चांस नहीं बनेगा। हाँ बोलिए सेन भाई, कंटिन्यू कीजिए। नहीं, एक्चुअली अक्षता का जो प्ली था, आई ऑल्सो सपोर्ट दैट. आई थिंक they've lost two teams who were better ranked than them. This is again a part. So ये भी fact था. They were better ranked than India. Both the teams, Chinese Taipei बोलिए या Thailand बोलिए, both the teams were better than us. At least ranking wise and football standard wise also they were better than us. So when our girls gave our whole out, I think they played really good game. I think in fact अगर men's team का मैं compare करता हूँ, हालांकि वो round of 16 में गए हैं, बट मेरे को राउंड वुमेन्स टीम का गेम उतना इंप्रेसिव नहीं लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट. इनफैक्ट वुमेन्स टीम शोड दैट इंटेंट एंड दे वर प्लेइंग अगेंस्ट बेटर टीम्स विद अ लॉट ऑफ इंटेंट. हाँ, उल्टा साइड में यहाँ पर हमको बांग्लादेश पेनल्टी से जीते एंड म्यांमार के साथ तो हम हार भी सकते थे, टाइम था. तो दिस इज द प्ले गेम अगर हम लोग खेले हैं, तो उस हिसाब से आई थिंक वी शुड more and more, I think we should try to promote women's game. I think हम लोग डिस्कस करते हैं, I see Arunavada always said me this when we used to talk before also. Women's team have a better chance to qualify for the World Cup if you see realistically than the men's team. Yeah. And that is इस something इसमें which we need to understand. इसमें एक ऐड करना चाहूंगा कि दोनों हायर रैंक टीम से वो हारे हैं, लेकिन आप गोल मार्जिन देखिए, एक ही गोल से हारे हैं दोनों मैच में। दोनों हाँ, मैच में वो पोजीशन पे थे कि वो ड्रॉ कर सकते थे और मैच जीत भी सकते थे, तो दैट शोज देयर correct. क्वालिटी, सिंपल एज दैट. Yeah. एंड Yeah. वैशाली मुदलिक 1 मंथ आई लीग 3, दैट्स द डिसअपॉइंटिंग थिंग भाई, दैट्स द डिसअपॉइंटिंग थिंग कि हम लीग, मतलब इसको लीग कहे कि कप कंपटीशन कहे, क्या कहे पता ही नहीं है. दैट्स द इशू एंड दैट्स द बिगेस्ट इशू विथ अस. वी आर, देखिए मैंने आज फिर भी मेरे चैनल पे भी बोला था कि आप अब देखिए वाई जापान इज टेक्निकली सो गुड, बिकॉज उन्होंने एक प्लान बनाया 100 साल का, उसमें उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमको रिसेंट, मतलब क्या बोलते कि तारीफें मिलेगी कि नहीं मिलेगी. उन्होंने लंबा सोचा कि हमारी सेकंड थर्ड जनरेशन आएगी, उनको ये मिलेगा कि हाँ भाई वाह वाही मिलेगी. यहाँ पे आपको देखिए, आप अगर ग्रास रूट पे काम करोगे तो आपको फैन बेस या फिर किसी की ओर से तारीफ नहीं मिलेगा. आपको सिर्फ क्या बोलते हैं कि नेशनल टीम अच्छा करती है तभी तारीफ मिलती है. तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि सेल्फिश ना होके, जो कि डिसीजन मेकर है, उनको सोचना पड़ेगा कि ग्रास रूट पे ज्यादा फोकस करे, क्योंकि अभी Clearer जो vision. आपका, हाँ क्लियर, हाँ वो सबसे जरूरी चीज है. आपको वहां पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, तब जाके होगा. और ये सारी चीजें आपको, चाहे भले ही क्या बोलते हैं कि सीनियर टीम का कुछ थोड़ा सा बजट कम करना पड़ेगा, लेकिन आपको अभी ग्रास रूट पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा. यू हैव टू इन्वेस्ट, सिंपल एज दैट. एंड उसमें ये सारी चीजें आएगी कि आपकी जो सेकंड थर्ड डिवीजन लीग से वो प्रॉपर तरीके से पूरे मंथ चलनी चाहिए, पूरे साल चलनी चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि एक मंथ का. भी आई लीग 2 भी आप देख लेना, वो भी 2 महीने का ही अफेयर होगा. जो 8 टीमों का आने वाला है वो भी सेम ही होगा. अब वुमेन्स लीग भी देख लेना, वो भी बोला है इस बार कि भाई चलो होम एंड अवे पे करेंगे, तो अच्छी बात है वो. तो आपकी जो सेकंड थर्ड डिवीजन सारी चीजें है, ये सारी यूथ लीग का भी पता नहीं है. तो दिस हैज टू बी इन अ प्रॉपर स्ट्रक्चर वे. ये करना पड़ेगा आपको, तभी आपको जो यंगर जनरेशन नेक्स्ट आएगी वो बेटर क्वालिटी की मिलेगी, अदरवाइज वो इसी क्वालिटी के प्लेयर निकलेंगे. And it's so important to plan this also well also, so that आपका कैलेंडर का भी जो सॉर्टिंग होता है वो इन सब चीजों से पे मैटर करता है कि आप कैसे करता किस है. चीज किन लीग को आप कर रहे हो, कौन सा प्लेयर किस लीग में प्ले इज प्लेइंग, बहुत क्रूशियल करता है ये ओवरऑल प्लानिंग में भी, अगर आप पूरे लाइक बिगर पिक्चर के थ्रू देखें तो. वेरी वेल पुट. इसमें दिक्कत ये आती है कि इसमें आपको फिर उतना मीडिया अटेंशन, इसमें उतनी तारीफ नहीं मिलती. अगर आप ये सारी चीजें करते हो, वाहवाही नहीं मिलती, ये सारी चीजें अंडर द बेल्ट चली जाती है. इसके रिजल्ट मिलते हैं लेकिन बाद में मिलते हैं, लॉन्ग जब तक टर्म ये एंड लोग परमानेंट रिजल्ट्स रादर देन शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस के हम आर्सेनल के
मोस्ट पॉपुलर कोच को ले आए और कहें कि आप प्लीज इंडियन फुटबॉल को सॉर्ट करें. तो we have to find those proper solutions that can actually That's set an the interesting culture. comment from Mallikarjun. I agree that because democracy and election stops everyone being unselfish. That's one of the reason. I agree because I think ये भी जो AFF regime है वो भी सोच रहा होगा कि next term definitely. So I'll quickly take predictions for Mohan Bagan versus Bangalore FC. And guys, sorry if you missed out on any comments. We are doing these lives every night. So उसमें से काफी ऐसे questions हैं जो throughout the ISL season चलेंगे और वो रोज आएंगे. So maybe like we already answered them yesterday, or we can answer them tomorrow as well. But if we missed out on any question, I'm really sorry about this, and we'll maybe take it up tomorrow. So yeah, and yes, Shan, your views on Mohan Bagan versus Bangalore FC. See, this game would be a pretty tight one, but I'll put Mohun Bagan ahead in this game. Because Bengaluru is coming after a loss, and I think Mohun Bagan has the depth again, which I say always, which is very important for winning league titles. They have that depth, and they have that flair in up front. Backline also looks settled, and they have played more and more games, competitive games in Durand Cup, which BFC sent a reserve teams in Durand Cup. I think Mohun Bagan has that edge, and I think Mohun Bagan will win that game. एक एक मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ माइंडसेट भाई. ये जो मैं करता हूँ मैं अकेला लाइव करता हूँ, इसलिए मैं आपके साथ मेरा और इसका फॉर्मेट चेंज है भाई. यहाँ पे हम गेस्ट बुलाए तो अभी आपके ही कमेंट लेते रहेंगे तो फिर गेस्ट का ओपिनियन कब लेंगे हम. ये वाली चीज है ना, तो फॉर्मेट दोनों का चेंज है भाई. तो यहाँ पे मतलब कमेंट्स लेते हैं सिलेक्टेड और हम जो डिस्कशन करते हैं उसमें आपके सबके ऑलमोस्ट आ ही जाते हैं. तो ऐसा नहीं है कि नहीं आता. और जो मैं करता हूँ उसमें मैं आपके साथ ही इंटरेक्शन करता हूँ, उसमें कोई गेस्ट नहीं होता. अदरवाइज आप गेस्ट को बुला रहे हो तो उसको भी उसकी भी बात तो सुननी पड़ेगी. अब आप आपके कमेंट लेते रह जाएंगे तो वो नहीं हो पाएगा ना. तो वो चीज है भाई, दोनों का फॉर्मेट चेंज है, वो समझना पड़ेगा आपको. और ये यहाँ पे ऐसा हमारा नहीं रहता कि आपके कमेंट मिस करने, हम पढ़ते तो जरूरी है भाई. ऐसा नहीं है कि हम छोड़ देते हैं आपके कमेंट्स. तो वाली चीज है. तो एक डिस्कशन का फ्लो टूट जाता है उस, और दूसरा कोई चीज नहीं होता कि कमेंट नहीं लेना है या फिर वो कर देना है. वो वाली चीज है. और फिर टाइम लिमिट भी होती है, 1 घंटे में सारी चीजें लेना. तो जितने हो सकते हैं उतने लेते हैं. ऐसा नहीं है कि हमारा कोई इंटेंशन होता है कि भाई इसका कमेंट एक आया है तो नहीं लेना है. तो वाली चीज है भाई. Thank you so much, Hiren, for clarifying that. Hiren, your views on the Mohan Bagan versus Bangalore FC. I think it's going to be a very interesting game, and I think Simon Gelson will be a lot of under pressure after the first game, particularly in terms of the gameplay wise. I think the way he played, जिस तरह से टीम उसने खिलाई थी, आई थिंक काफी प्रेशर में होगा. एंड जिस फॉर्म के साथ मोहन बगान आ रही है, इट्स गोइंग टू बी रियली रियली डिफिकल्ट टू स्टॉप देम. And I think Mohan Bagan will win this match, but I think it will be a close fight. Last question from my side, which is that it's the 5th day of the season. Have you seen any improvement in the overall sort of the talks that are happening around ISL? या आपको लग रहा है कि थोड़ा momentum for the season has actually increased or gone up? थोड़ा excitement आया है in the groups or the discussions you are having? टू बी ऑनेस्ट डिक्लाइन आया है, आई वुड से, जो हुआ है उसमें. एंड लेकिन जो नंबर्स अभी आई थिंक 1-2 दिन पहले आए थे जिसमें बता रहे थे कि काफ़ी बढ़िया नंबर्स जो अभी तक व्यूअरशिप में आया है, सो उसमें पॉजिटिव दिखा है. लेकिन ओवरऑल अभी जो मेरे अराउंड मैंने देखा है, फिर चैनल पे जब आईसीएल का डिस्कशन या फिर उसका होता है तो उतने ज़्यादा लोग एंगेज नहीं हो रहे जितना नेशनल टीम के लिए या फिर उसके डिस्कशन में हो रहा है, या इन द मैटर ऑफ द फैक्ट कि चाहे अंडर 19 का मैच हो, वुमेन्स का मैच हो, उसमें एक्साइटमेंट ज्यादा है लोगों की रादर देन आईएसएल आफ्टर दैट होल एशियन गेम्स सागा ऑफ अ क्लब वर्सेस कंट्री. सो दैट्स अफेक्टेड. आई थिंक वो एक अफेक्ट हुआ है. बट आई थिंक धीरे धीरे मोमेंटम पकड़ेगा. लेकिन आई थिंक एक वर्ल्ड कप है जो क्रिकेट का, आई थिंक वो एक ज्यादा मेरे को लगता है कि हिट कर देगा फिर से. सो आई थिंक जो मोमेंटम है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में शायद ज्यादा बने कंपेयर टू फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन, कि जहाँ पे मतलब थोड़ा सा प्ले ऑफ का भी वो आ जाएगा एक्साइटमेंट कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, और सारी चीजें एशियन कप भी हुआ होगा. तो देखते हैं. बाकी अभी तो आई डोंट थिंक सो कि उतना ज्यादा हाइप बना है. शायद आपकी टीम का तो आज मैच था. Hype, देखो Akshata, I always said that we don't have a single game on Sunday in this whole ISL calendar. ये फिक्सचर जब बनाया गया था, पता नहीं हम लोग के ऑफिशियल देखे भी नहीं होंगे शायद, ओके कर दिए होंगे नहीं देख के शायद. मेरे को नहीं लगता एक वीकेंड में एक टीम का सपोर्टर डिजर्व्स अ मैच. इतना तो डिजर्व करता है एक सपोर्टर.
मतलब हाल हाल फिलहाल में हम लोग के यहाँ पर इतना रिस्ट्रिक्शंस है, अगर आपको गेम देखना है, आपको लेके जाना है टिकट, उसको स्कैन करना है, फिर लेके आना है, मतलब बहुत इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस इन कोलकाता। तो उस हिसाब से फर्स्ट मैच मोहन बागान का मैच इट वाज सैटरडे, सो अटेंडेंस ज्यादा था। 27,000 वाज द ऑफिशियल अटेंडेंस दैट डे। उस हिसाब से मंडे हम लोग का कम हुआ है। सो लास्ट ईयर व्हेन वी प्लेस्ड अगेन एफसी गोवा, और फर्स्ट गेम अटेंडेंस वाज 17,000। उसके साथ मैं आज का गेम का कंपेयर करूंगा तो थोड़ा कम है। हिरेन इज करेक्ट इन दैट वे, दैट कम है, बिकॉज वो भी वीकडेज में ही था हिरेन। दैट गेम वाज ऑन थर्सडे। सो अगर उसको मैं कैलकुलेट करता हूँ क्वालिटी वाइज, आई थिंक बेटर अटेंडेंस होना चाहिए। ऑफ लेट बारिंग दैट केबीएफ एंड बीएफसी गेम, कोई भी गेम में वैसा हाइप क्रिएट नहीं हुआ है अभी तक जिससे लगे मैच हो रहा है। वो फील नहीं था। सैटरडे का अगर दो मैच अगर देख लो आप, ओडिशा प्लेइंग, इट वाज लुकिंग अ डेड गेम इफ यू आस्क मी पर्सनली। कल का मैच अगेन इट वाज अ गुड गेम यस्टरडे, कल अच्छा गेम हुआ, अच्छा गेम बट हुआ। सपोर्टर्स नहीं होगा तो कैसे पल्स, एंड हाउ विल गेन द न्यू ऑडियंस। सपोर्टर्स होंगे, फील्ड स्टेडियम रहेगा, एक बस रेडी होगा, बस बस ही हमको, मेरे को नहीं लगा अभी तक नहीं हुआ। होपफुली इट विल कैच अप, बट अगेन वर्ल्ड कप इज देयर, क्रिकेट वर्ल्ड कप, और हम लोग को पता है हाउ क्रिकेट वर्क्स इन इंडिया। मतलब शायद मैं क्रिकेटर बनता, कुछ हो जाता, बट ठीक है, वरना क्या कर सकते हैं। Any last remarks before we end the podcast? लास्ट रिमार्क तो यही रहेगा कि भाई आप देखिए इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट कीजिए एंड डू वॉच भाई योर लीग्स आल्सो, दैट्स द फाउंडेशन फॉर योर नेशनल टीम, सो यू नीड टू सपोर्ट योर लोकल क्लब्स व्हाटएवर इज देयर, और नियर बाय में जो भी हो उसको सपोर्ट कीजिए, तभी बढ़ेगा भाई। बाकी ये देखिए ये सारी चीज़ें तो आती रहेगी एंड ये उनका ज़्यादा मतलब फैन बेस को इसमें ये नहीं होना चाहिए कि भाई ये इसको कर दो, उसको वो कर दो, इसको बैन कर दो भाई, तो फिर फुटबॉल ये बढ़ेगा ही नहीं इंडिया में, ऐसे ही चलता रहेगा। सो रादर देन इन्वॉल्विंग इनटू दैट, आई थिंक वी नीड टू सपोर्ट और क्लब्स और कंट्री, सिंपल इज दैट, एंड तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज तो बस जो एक हमारा एक काल चक्र चल रहा है उसी में हम चलते रहेंगे और हर वक्त होता रहेगा कि पोटेंशियल है, लेकिन कभी वो बाहर नहीं निकल के आएगा, तो वाली चीज़ है। तो रिक्वेस्ट टू ऑल दी फैंस की डू सपोर्ट क्लब्स, कंट्री, फुटबॉल, इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट कीजिए, कहीं पे भी हो रहा है, आपके लोकल लेवल पे भी हो रहा है। अभी देखिए काफी सारे जैसे भोपाल, वडोदरा, भी गुजरात में, वहाँ पे I-League 3 होगा, तो आप जाइए एक आध मैच अब देखने तो जाइए, आपको पता चलेगा कि भाई कैसे सारी चीजें होती है, आपको काफी सारी चीजें पता भी चलेगी उससे कि भाई हाँ अभी ये कैसे कंडक्ट होती है सारी चीजें, और आपको वहाँ पे पता चलेगा कि भाई हाँ ये इश्यू है, इस तरह से ये नहीं होना चाहिए। तो कोशिश कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए, बस यही बोलेंगे। Correct. Fine. I would say everybody, see, you need to spend some time. 8 बजे से गेम स्टार्ट हो रहा है। If you come from office, अब देखो, एटलीस्ट आई एम आस्किंग पीपल who are tuned into watching our Europa leagues and other things, world football, अब थोड़ा you need to take out some time. In Kolkata, in Kerala, what we see when Argentina plays, we become Argentina supporter, Brazil supporter. और इंडिया के बाहर दूसरे स्टेट में भी सेम सिचुएशन है, हम लोग दूसरे कंट्री को सपोर्ट करते हैं। इट्स गुड, ठीक है, चलो वर्ल्ड कप में आपका कंट्री नहीं खेला, कर सकते हो, दैट्स, यू हैव ऑल द राइट। बट आपका कंट्री का लीग जब चल रहा है, बट आप कंट्री जब खेल रहा है, यू शुड एटलीस्ट वॉच देयर गेम। दिस इज द मिनिमम। आधा घंटा देखो, हाफ देखो, और देखिए ये तो पता है कि जो हाईएस्ट लेवल का स्टैंडर्ड होता है, जो होता है, उसके कंपैरिजन में आप देखोगे तो आप नहीं देख पाओगे कि भाई ये तो क्या ही चल रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा अगर आप इन्वॉल्व होगे तो मजा आएगा। आपको ये सोचना चाहिए कि उस लीग में भी आप देखिए, जो ये प्रीमियर लीग है उसमें जो बॉटम हाफ ऑफ द टेबल है उनके भी फैन बेस है, ऐसा नहीं है कि उनके फैन बेस नहीं है, तो वो क्यों, उनके क्लब तो कभी ट्रॉफी नहीं जीते, लेकिन फिर भी फैन बेस तो है उनका। तो वो आपको एक रिलेशन, अगर आप थोड़े से इन्वॉल्व होंगे तो आप क्रिएट कर पाओगे, और आपको भी लगेगा कि नहीं भाई इसके साथ एसोसिएट हो सकते हैं, तो ट्राई कीजिए, तो मजा आएगा। नहीं, मैं हिरेन और एक चीज में ऐड करूंगा, व्हाट यू सेड वाज दैट प्रॉब्लम क्या, दिस इज द थिंग व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड। when we love something or we are into something, we should have it unconditionally, we should not expect something out of it, हाँ, and वो that is something। दिक्कत यही है कि यहाँ पे लोग क्या बोलते हैं कि इंडियन फुटबॉल जब वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर लेगा तब मैं देखूंगा, नहीं तो नहीं, ये ऐसे नहीं होता भाई, इफ यू आर, शर्ट से हाँ कंडीशन ट्रांजैक्शन वाइज तो हाँ वो तो लव नहीं होता, फिर तो ट्रांजैक्शन बन जाता है। इफ यू लव समथिंग, नो, यू शुड हाँ सपोर्ट। और लव किसके लिए भाई? कंट्री के लिए।
इतना तो कर ही सकते हो आप. हाँ. मैं तो नहीं बोल रहा हूँ यार कुछ दूसरे चीज के लिए. इफ यू लव समबडी आई थिंक अनकंडीशनली आप करो यार. कंडीशन से तो फिर देखिए मैगडी भाई एएफ मैंने बोला ना उनका वो प्रॉब्लम चलता रहेगा. हमें वो नहीं देखना है, हमें टीम को सपोर्ट करना है. सिंपल एज दैट. वो चाहे जो भी करे वो तो चलता ही रहेगा. वो आएंगे, कोई दूसरे बंदे आ जाएंगे, वो भी वो करते रहेंगे. वो तो हर जगह इशू है. वो हमारे यहाँ पे नहीं है. स्पेन की वुमेन्स टीम वर्ल्ड कप देखी है, जीत गई है, हाँ लेकिन क्या मसला क्या चल रहा है. तो वो तो हर जगह पे अपने अपने मसले चल रहे हैं. हाँ जर्मनी वो में दैट देख इज. लीजिए. तो वो तो चलता ही रहेगा. हमें तो भाई हमने तो क्या बोलते हैं कि गेम से प्यार किया है, तो उसको देखिए, उसको सपोर्ट कीजिए. सिंपल एज दैट. Yeah, yeah. Local community also, like, if you have anything happening in the local Hmm. community, please go out and support. There's a very nice documentary on Wrexham that has come up in on Hotstar. So अगर आप वो देखें, एक छोटा सा शहर, तो पूरी कम्युनिटी उस फुटबॉल क्लब को सपोर्ट करती है और इतनी भावुक है उसके बारे उसको लेके. So it just shows that the potential that support of normal people like all of us can play in the development of the Hmm. sport. Thank you so much, both Hiren and Shayan, for joining us, and looking forward to having the discussion after the next match. And thank you Thank everybody you. else for joining. Please keep supporting us. Keep follow the 3 channels. The 4 channels are on foot is not here today, but please follow and subscribe and like and share, and please keep joining us. Thank you. Thank you Akshat. Thank you Good Hiren. night, guys. Thank you everybody.